student, welcome to math class. This is my second video of the topic arithmetic progression. In this video we will discuss some more question related to arithmetic progression. In this video we will discuss just up to an term question in this video. हम इस वीडियो में सिर्फ an तक के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके. First example, in the given AP 10, 7, 4, find its 14th term. Mean इस AP की हमें 14th term निकालनी है. What is the value of A? A mean first term. The value of D mean common difference. Second term minus first, that is equal to minus 3. Now A14 mean A plus 14 minus 1 into D, A plus 13D. We write directly as A plus 13D the value of A14. Now the value of A 10, value of D minus 3, 10 minus 39, that is equal to minus 29. The 14th term of the given AP is minus 29. Find the 15th term of the given AP. 15th. Again, the value of first term mean A. 7. The common difference 10 to the 20, 21 by 2 minus 7. The LCM is 2, 21 minus 14. 7 by 2 is the common difference of the given AP. Now A15 mean A plus 14D. 7 plus 14 into 7 by 2. 7 7 ja. 7 plus 49, 56. The 15th term of the given AP, the value is 56. If two APs are given, 68. कहता है if the nth term mean इसकी nth term and the nth term of this are equal, दोनों की nth term क्या है, सेम है. तो निकालते हैं हम पहले. इसमें A कितना है, 70. D निकालें. सेकंड बाय माइनस फर्स्ट 3 आ गया. व्हाट इज an? A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी. द वैल्यू ऑफ A 70. n माइनस 1 इंटू 3. 70 प्लस 3n माइनस 3, 67 प्लस 3n. That is the nth term of first AP. Second AP, the value of A 50. The value of D, second minus first 5. an A plus में n minus 1 into D. 50 plus n minus 1 into 5. 50 plus 5n minus 5. 45 plus 5n. Now according to statement, statement क्या कहती है कि both are equal. Mean 45 plus 5n equal to 67 plus 3n. इस 3n को इधर लाओ. 5n माइनस 3n, 2n बच गया. 67 में 45 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा. कितना आ गया, 22. n क्या आ गया, 11. इट मीन द वैल्यू ऑफ 11th टर्म ऑफ बोथ द AP आर सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेक करो कि क्या 158 इस AP में आएगा. चेक करते हैं हम यस कह देते हैं. यस, द नंबर 158 कम एट द लास्ट, सबसे लास्ट में आ गया. अब इसमें A कितना हो गया, 3 हो गया. D कितना हो गया, 7 हो गया. और लास्ट टर्म कितनी होगी, 158. अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A कितना है, 3 है. n माइनस 1, D कितना है, 7 है. 158. 7 इंटू n माइनस 1, 3 उधर ले गए. 158 में 3 काटा, कितना बच गया,
155। n माइनस वन कितना आ गया? 7 से कैंसिल नहीं होता, इसका मतलब n फ्रैक्शन में आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में होती ही नहीं है, ना ही तो जीरो होती हैं और ना ही नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब 158 डज नॉट कम इन द गिवन एपी, इस एपी में नहीं आता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास, कहता है इफ इन एन एपी द सम ऑफ इट्स फिफ्थ एंड एट्थ इज 47। कहता है एक एपी की फिफ्थ टर्म और उसी की एट टर्म का सम कितना है? 47 है। एंड सम ऑफ इट्स नाइन्थ एंड 14th सेम एपी इक्वल टू 77। देन what is the value of its first term and what is the value of its common difference? What is the value of a5? A plus 4d and a8 a plus 7d 47, 2a plus 11d equal to 47, that is number 1. A plus 8d and a plus 13d equal to 77, 2a plus 21d equal to 77, that is equation number 2nd. Now from equation number 1st and 2nd, change the sign, they are cancelled. 10d equal to 30, d equal to 3, it means common difference कितना आ गया? 3 आ गया। Now from first 2a, the value of d equal to 3, 47, 2a equal to 47 minus 33, 2a equal to 14, then a equal to, it means first term कितनी आ गई? 7 आ गई और common difference कितना आ गया? 3 आ गया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, if Mr. X saved rupees 200 in first week of a year and he increased his saving by rupees 200 every week. In the nth week, if the money saved by him is rupees 4400, then find the value of n. मीन एक है मिस्टर एक्स, कहता है कि वो ईयर के फर्स्ट वीक में 200 रुपीज सेव करता है और हर वीक 300 रुपीज वो इंक्रीज करता जाता है और nth वीक में उसने 4400 रुपीज सेव किए। तो बताओ n की वैल्यू क्या है? तो फर्स्ट वीक मीन फर्स्ट टर्म कितने रुपए सेव किए? 200 रुपीज। नेक्स्ट वीक वो बढ़ा देता है 300, मीन सेकेंड वीक में वो 200 प्लस 300 कितने सेव करेगा? 500 रुपीज। इट मीन सेकेंड टर्म कितनी आ गई? 500 आ गई। हमें तो डी चाहिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, कितना आ गया? 300 आ गया। और nth वीक में उसके पास 4400 रुपीज थे। nth वीक मीन an इक्वल टू कितना है? 4400 रुपीज। द फॉर्मूला फॉर an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 4400 रुपीज। द वैल्यू ऑफ a 200 and the value of d 300। अब इस 200 को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन? इसको माइनस करके कितना बच गया? 4200। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटा 14, n माइनस 1 कितना आ गया? 14। तो वैल्यू ऑफ n कितनी आ गई? 15 आ गई। Now next example, if the seventh term of an AP mean A7 equal to 46 and 12th term of the same AP equal to 81, mean किसी AP की 7th term की वैल्यू कितनी है? 46 है और 12th term की वैल्यू कितनी है? 81 है। then find its 21st टर्म। उस एपी की 21st टर्म की वैल्यू कितनी होगी? तो हम यहाँ क्या करेंगे? लेट
A be the first term, D be the common difference. It means the 7 term mean A plus 6D. Value is 46, and the 12 term mean A plus 11D. The value is 81. That is equation number 1, and that is equation number 2. Now these are the linear equation in 2 variables, and now change the sign. अब हमने साइन क्या कर दिया, इसके चेंज किए, तो A से A तो कैंसिल हो गया. 11 किसके हैं, माइनस के. 6 किसके हैं, प्लस के. तो ये आ गया माइनस का 5D. और यहाँ पर 81 किसका है, माइनस का, और 46 प्लस का, तो ये आ गया जी माइनस का 35. नाउ माइनस एंड माइनस कैंसल, 5 7 जा. द वैल्यू ऑफ D इज 7. अब D को अपन यहाँ पुट कर देते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट A plus 6 into 7 equal to 46. A equal to 46 minus 42, that is equal to 4. It means the value of A is 4. Now A 21. It means A plus 20 D. The value of A is 4 and the value of D is 7. 140 plus 4, 144. It means the value of the 21st term of the given AP is 144. That is the answer. शुरू करते हैं आप इसका. Which term of the given AP? Which term? That is the AP. 7, 12, 17 will be 80 more than. कितना हो गया, 80 more than its 54 term. अब कहता है कि इस एपी में कौन सी टर्म है जो इस एपी की 54 टर्म से कितनी ज्यादा है, 80 ज्यादा है. तो हमें निकालना है. अब हमें बताने की टर्म कौन सी है, और जिसके बारे में नहीं पता होता उसको हम बोलते हैं AN. क्या बोलते हैं उसको, हम AN बोलते हैं. तो लेट द रिक्वायर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू AN. AN मैंने इसको लेट कर लिया. अब इसमें A कितना है, A है 7, और D कितना है, D है 5. अब A भी आ गया, D भी आ गया. अब कहता है जो AN है ना वो 54 टर्म से ज़्यादा है. कितनी ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है. मीन ये AN हो गया और ये हो गया A54. कहता है ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम. आप चाहते हैं दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. इसका मतलब या तो इसमें से आप 80 माइनस कर दें, या इसमें आप 80 प्लस कर दें. जैसे मैंने इसमें 80 प्लस किया तो ये दोनों केस आपस में क्या हो गए, सेम हो गए. अब आप इसमें n निकाल लेते हैं. an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A54 का a प्लस 53d. 80 आ गया, कोई डाउट नहीं है. अब a से क्या हो गया, यहाँ कैंसिल ही हो गया. d कितना है मेरे पास, 5 है. n माइनस 1 इंटू 5, 53 इंटू 5 प्लस 8. अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 265 प्लस 80 है, ये 80 आ गया. तो ये बन गया 5 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 385. अब ये 5 से कटता है, काट दिया हमने. 5 6 जा 30 और 9. n इक्वल टू 69 प्लस 1, n इक्वल टू 70. इसका मतलब जो 70th टर्म है ना वो 54 टर्म से कितनी ज्यादा है, 80 ज्यादा है. अब इसको हम लॉजिकल वे से भी कर लेते हैं. कैसे करते हैं, देखिए कितना मोर है, 80, और हमारा d कितना है, 5 है. इस 80 को d से डिवाइड कीजिए.
कितना बच गया, 16 आ गया। इसका मतलब इस 54 में जैसे ही मोर मीन प्लस करेंगे, 16 प्लस करेंगे ना, 54 प्लस 16 कितना बन गया, 70 बन गया। मोर है तो प्लस करेंगे, और अगर लेस होता तो क्या कर देते अपन, माइनस कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, वैसे तो मुझे इससे पहले करना था, चलो। कहता है आपको एक एपी की बना है, और वो एपी कौन सी है, 7, 13, 19 और 727। कहता है इसका नंबर फर्स्ट है, इसका नंबर सेकंड है, इसका नंबर थर्ड है, इसका नंबर कौन सा होगा। मतलब ये बताना है कि 427 किस नंबर पे आती है, ये टर्म कौन सी है। जैसे इसको देखते हैं ना अपन, 19 की बात करता तो क्या कहते हैं अपन, दैट इज द थर्ड टर्म। अब विच 427 स्टैंड एट विच नंबर, किस नंबर पे आती है बताना है। तो वापस करते हैं अपन, ए कितना है, 7 है, डी कितना है, 6 है, दो तो आ गए। अब 427 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं इसकी लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं अपन इसको, लास्ट टर्म। कितनी है, 427 लिख दिया हमने। अब लास्ट टर्म को हम बोलते हैं एल बोलते हैं, और एल का मुझे फॉर्मूला पता है, ए प्लस में n-1 इंटू डी, जिसको हम ए एन भी बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ डी इज 6। इस 7 को आप उधर ले जाते हैं, क्या बन गया, 6 इंटू n-1, 427 माइनस 7, यहाँ तक आ गए। अब आप इसमें क्या करते हैं, 7 माइनस करते हैं, 6 इंटू n-1 420, n-1 420 बाई 6 70, n इक्वल टू 70 प्लस 1, n इक्वल टू 71। इट मीन द नंबर ऑफ दिस टर्म इज 71st। मतलब फाइंड ऑल द 2 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। मीन मुझे 2 डिजिट नंबर बताने हैं जो किससे डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं। और 2 डिजिट नंबर कहाँ तक होते हैं, जिनमें 2 डिजिट स्टार्ट होता है 10 से, और कहाँ तक जाते हैं, 99 तक। मीन इस 10 से 99 में कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, 3 के मल्टीपल हैं। तो पहला तो हो गया 12, नेक्स्ट हो गया 15, फिर 18, ऐसे चलते गए, लास्ट कौन आ गया, 99। अब वही क्वेश्चन फिर बना, व्हाट इज ए की वैल्यू 12 है, व्हाट इज डी, डी की वैल्यू 3 है, और व्हाट इज एल, एल की वैल्यू 99 है। अब एल का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में सॉरी n-1 इंटू डी इक्वल टू 99। द वैल्यू ऑफ ए इज 12 and value of d is 3, 99। 3 into n-1, 99 minus 12, 3 into n-1, 87, 3 से काट दिया मैंने 29, n equal to 29 plus 1, n equal to 30। It mean total number are, कितने नंबर हो गए टोटल, 30 हो गए। कौन से, which are divisible by 3, and a person saved ₹10 on January 1। एक आदमी ने 1 जनवरी को 10 रुपये सेव किए, एंड सेव्स ₹15 ऑन January 2। 2 जनवरी कितने रुपये सेव किए, 15 रुपीज सेव किए, एंड ऑन 3 जनवरी ही सेव्स ₹20। इट मीन ऑन एवरी डे ही सेव्स ₹5 मोर। तो पहले दिन 10 रुपये, अगले दिन 15 रुपये, उससे अगले दिन 20 रुपये, ऐसे वो सेव करता गया। हाउ मच मनी सेव्ड बाय हिम ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब मंथ के लास्ट डे को उसने कितने रुपए सेव किए, तो हमें ये बताना है। तो देयर आर 31 डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी,
इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास फर्स्ट डे कितने रुपए सेव किए उसने, 10 रुपए ना। इसको हम ए ले लें, ए कितना आ गया, 10 आ गया। और सेकंड डे उसने कितने सेव किए, 15 रुपए। थर्ड डे 20 रुपीज। इसका मतलब 5-5 रुपए वो बढ़ाता जा रहा है। तो डी कितना आ गया, डी 5 आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हमारे पास, ए 31। मतलब इस दिन उसने कितने रुपए सेव किए बताने हमें। ए 31 का फॉर्मूला बन गया ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, या सीधा लिखिए ए प्लस 30 डी। ए कितना है मेरे पास 10, डी कितना है मेरे पास 5, 150, 160। इसका मतलब 31 जनवरी को वो सेव करेगा रुपीज 160 सेव करेगा। अब क्वेश्चन ये है, ये मेरे पास एक एपी है 8, 13, 18 और 238। फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट। इस एपी की लास्ट में से 7 टर्म कौन सी आएगी, मीन मुझे अब बैक आके बताना है कि 7 टर्म कौन सी है। ये लास्ट है, इससे बैक आना है, हमें बताना है कि एपी की लास्ट टर्म कौन सी है। इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा वे है। अब इस एपी को अगर मैं रिवर्स वे से लिखूंगा तो मेरा रिजल्ट एपी में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा 238 डैश लगाया 18, 13 और 8। ये मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अब इस रिवर्स क्या करने से ये रिजल्ट एपी में रहा। हाँ ठीक है कि जो फर्स्ट टर्म थी वो क्या बन गई, लास्ट बन गई, और जो लास्ट टर्म थी वो क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। और डी में भी चेंज आएगा, डी में भी चेंज आएगा। इसमें ए कितना था 8 था, डी कितना था 5 था, और लास्ट टर्म कितनी थी 238 थी। लेकिन अब इसमें ए कितना हो गया 238। और डी कहाँ से निकलेगा, डी का रूल क्या था, टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना। तो टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस किया, मीन 13 में से 18 माइनस किया, या 8 में से 13 माइनस किया, तो डी मेरा माइनस का 5 आया। ऐसा कब करना है, जब पूछा जाए फ्रॉम द एंड या पूछा जाए फ्रॉम द लास्ट, रिवर्स करके एपी भी लिख देना है। अब मुझे कौन सा टर्म चाहिए, 7 टर्म चाहिए ना। 7 फ्रॉम द लास्ट है ना, अब 7 फ्रॉम द बिगिनिंग, वही बात है। A7 का फॉर्मूला A प्लस 60, ए कितना है मेरा 238, और डी कितना है मेरा माइनस का 5। 238 माइनस 30 कितना आ गया 208। इसका मतलब द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड इज 208।